Good afternoon today. Viewers, we normally log in at 11 a.m. and we are extremely sorry to start with. I must apologize that at 11 a.m. there was suddenly a crisis amongst all of us. We were not able to come on board on the screen, technical glitches. So therefore, a good afternoon to you, and we hope that it hasn't inconvenienced you, and we hope that you've been able to join. And if you are finding it difficult and need to leave in between, you know that the recordings do exist on the Ministry of Tourism's website, so you could join in later. Though please stay with us for this 1 hour. There's so much to learn today on a subject that I think affects all of us in so many ways and is the great part of our heritage and culture. And I would say it's the science of India, the Nadi Vigyan. It is part of the Ayurvedic Gyan that comes to us almost 5,000 years back. Also, there are references to it and clear references in the Atharvaved on the Ayurvedic medicinal systems. And how fascinating it is for the modern science or people who do not understand these ancient wisdoms, that how could somebody just touch the pulse here, feel the movement in the pulse, the rapid movement, the slow movement, and how it impacts, and how the doctors were able to figure out what was not so right between the three balances of the Vat, Pitta, and the Kapha. Well, telling us a lot more about it today with a more focused part of the body being the spinal column, because that is such a central part of the human body. And we are bringing you this element today. And I'll tell you why we are bringing it from the Ministry of Tourism. You must be wondering, right? This is not the Ministry of Health. So how come we are talking about all this? I'll tell you that in a moment. But for now, bringing us all this fascinating science of ancient India is Dr. Lakshminarayan Joshi ji. You've seen him earlier. We did a webinar with him and two more yoga practitioners for the International Yoga Day 2020. But today he's been joined with his better half, Dr. Arpita. And Dr. Arpita Negi and he have trained with the same guru. And I was asking them, how did they meet? Well, they met in the Guru's ashram and they had the Guruji's blessings, which brought them together as a husband and wife. And now both of them are working all the time to bring to the world the ancient wisdom of the Nadi, not only the Nadi Vigyan, but the entire science of Ayurveda. And viewers, why are we bringing this to you from the Ministry of Tourism? If any of you are curious, well, tourism, what is tourism all about? Tourism is about appreciating all those elements of a land, whether it's the food, whether it's the arts and the crafts, whether it's the more fixed heritage. It could be monuments, forts, palaces, the deserts, the forest. We brought you all those earlier, the rivers, and so much more. But also a part of the tourism's experience is the sheer culture, how we've grown layers and layers as an ancient civilization, and what we are as a people today. How have we survived the various vicissitudes of nature and sometimes man-made ones also, and how are we so rooted as a culture? Ayurveda is a significant part of that journey, and we want all of you to visit. If you are an Indian, revisit your ancient civilization. And if you're not an Indian and are not exposed to it, and you live anywhere else in the world, then do come to our beautiful, incredible country and come and appreciate and learn as to what is it that has kept this ancient civilization so beautifully together. So that's the journey of Incredible India, the finding the incredible you in this incredible country. So I'm going to hand over the web stage to Dr. Lakshminarayan ji. He's going to be talking to us about very, very important things as we move forward dealing with COVID, how we can do it. So namaskar, Dr. Sahab. नमस्कार. नमस्कार, वेलकम बैक. आप हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद. मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमें नाड़ी विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेदा के बारे में भी बताएंगे और द्विभाषी में बताने की कोशिश भी करेंगे, because we have viewers, as I said, from all over the world. Thank you, Dr. Saab, and welcome once again. First of all, very good afternoon from World Capital of Yoga, known as Rishikesh. और सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ because of the some different conditions कि हम आज 11 बजे आपके साथ ज्वाइन नहीं हो पाए, लेकिन अब आपके साथ अब ज्वाइन कर रहे हैं. और आज
बहुत सारी आपसे बात करेंगे नाड़ी विज्ञान की। और ये नाड़ी विज्ञान की जो मैं आपसे बात करूंगा, दिस ऑल द टॉक अबाउट द नाड़ी विज्ञान, दिस बेस्ड ऑन yogic sciences, not specifically with the Ayurvedic sciences. This more related with the yogic sciences, because I'm working in the field of yoga. Last 32 years I'm working. So this is my field. तो नाड़ी विज्ञान के बारे में मैं आज आपसे बहुत सारी बात करने वाला हूं, और स्पेशली ये नाड़ी विज्ञान है क्या, ये बहुत सारी आप चर्चा करते हैं। और अभी आपने हमारे स्क्रीन में जो एक पिक्चर को देखा, उसमें हम लोग देख रहे हैं, दिस इज नोन एज योगिक दिस इज आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक टेक्निक, जिसमें हम नोन एज अ नाड़ी परीक्षण। जो अभी आप पिक्चर हमारा देख रहे हैं, ये नाड़ी परीक्षण का एक पिक्चर है, दिस पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, जहां पर हम रोगों को डायग्नोस करने का काम करते हैं, जिससे हम ये पता लगा रहे हैं कि शरीर में कौन सा रोग, कौन सा दोष प्रबल है। वात पित्त कफ जो त्रिदोष हमारे हैं, 3 दोष हैं, उन दोषों में से कौन सा दोष कुपित है, उसकी जानकारी हम इसके माध्यम से ले रहे हैं। जो अभी आज आपने हमारा ये पोस्टर देखा है आज, इसमें हम लोग इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं अबाउट द नाड़ी विज्ञान, दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड साइंस, बहुत ही पुराना है, कोई नया नहीं है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है राइट अवे हम इसमें, एक तो एग्जामिनेशन बहुत परफेक्ट है, दूसरा इसमें हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स को बहुत आसानी से उन्हें क्योर भी कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा अपने डाइट को, लाइफस्टाइल को फॉलो करें, थोड़ा रूटीन को फॉलो करें, तो हम बहुत आसानी से बहुत सारे डिसऑर्डर्स को लगभग क्योर कर सकते हैं थ्रू द नाड़ी विज्ञान। देखिए, नाड़ी विज्ञान के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नाड़ी विज्ञान के बारे में अगर आप देखेंगे, दिस इज मेन सब्जेक्ट ऑफ योगिक साइंस। हम लोग कहते हैं कि योग विज्ञान का ज्यादा विषय है, क्योंकि ऑल द योगिक स्क्रिप्चर्स इज सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ नाडीज। जितने योग के ग्रंथ हैं वो नाड़ियों के बारे में बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं और बताते हैं उनके बारे में। और आपने सुना भी होगा, और हर एक आदमी जो एक आम आदमी है वो भी 3 नाड़ियों को जरूर जानता होगा, जिन्हें हम वात पित्त कफ नाड़ी कहते हैं। और ऐसे ही एक 3 नाड़ियां हमारे योग में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये 3 चीजें मेरे को लगता है कि बहुत बहुत कॉमन हैं, और लगभग हर व्यक्ति इन्हें कहीं ना कहीं से थोड़ा ना थोड़ा जानकारी इसकी रखता है। देखिए, योग के जो ग्रंथ हैं ये कहते हैं कि शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द योगिक स्क्रिप्चर्स हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ीज हैं, जिनका जो ओरिजिन का एरिया है ये कहलाता है कंद योनि स्थान। यानी जो नाभि प्रदेश का हिस्सा है, जो नाभि है उसका जो 4 उंगुल का हिस्सा है, ये हमारा कहलाता है कंद योनि स्थान। यानी कि ये ओरिजिन करता है वो सारी नाड़ियों को जो पूरे शरीर में विद्यमान है। जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं वो नाभि से निकलकर पूरे शरीर में जा रही हैं। और आपने देखा, अगर हम उन नाड़ियों को चेक भी करते हैं, जो आयुर्वेद में डायग्नोस्टिक टेक्निक हमारी है, उसमें हम नाड़ी परीक्षण जो हम कर रहे हैं, उसमें अगर हम जो नाड़ियों को देख रहे हैं उसका आधार भी ये है, लेकिन इनका मूल स्थान जहां से निकलती हैं ये कंद योनि स्थान ही है। और इसीलिए हम इसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर योग और आयुर्वेद की आप बात करें तो वो नाभि को शक्ति का केंद्र मानता है। और हमारे वहां ये संकल्पना है ये मान्यता है कि अगर आपकी नाभि व्यवस्थित है, अगर वो बिल्कुल व्यवस्थित है, यानी उसका डायग्नोस्टिक हमारा नाभि परीक्षण भी होता है, जिसमें हम लोग नाभि को देखते हैं। तो दिस इज नोन एज अ नेवल एग्जामिनेशन। दिस इज अ appropriate technique to diagnose the disorders. Especially the latest science not believe in this technique कि भाई नाभि भी हिल जाती है, but in our old times or our villages till date the people believes and they are right away benefited कि अगर नाभि की लोकेशन डिसलोकेशन हो गई तो वो हर्निया नहीं होता हमारे वहां, वो होता है कि नाभि को आप सेट कर लीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंद योनि स्थान को सेट करने का तरीका होता है, जिसे हम नाभि को सेट करना कहते हैं, कि नाभि को व्यवस्थित करना कहते हैं। तो इसके लिए आई एम इंटरप्टिंग यू डॉक्टर साहब, नाभि इज नेवल, इज इट? यस, इज नेवल. Navel. Okay. Navel. The navel is, madam, this navel is known as a
Kand Yoni Sthan. The Kand means the root. The Kand is root, and Yoni means especially originated. So this is the place our all the nadis originated with this area. This is the reason this is known as a very special area. Doctor, also the point from where when the newborn is there, the newborn is the life flows to the newborn from the umbilical cord. Umbilical cord. वो हमारे वहाँ हम कहते हैं, ये हम लोग कहते हैं कि जो the baby is nourished inside the mother womb with the help of umbilical cord. This is known especially the nadi, and right. in the end we separated umbilical cord. Before that, the people are not concerned with umbilical cord so much. But if you remember nowadays, तो इसका prevention करा रहे हैं कि इसको रख रहे हैं. When then we can utilize for the stem cell something after for some disorders. तो ये importance सब पकड़ में आ गया है कि this is very important. The navel is very important. And before we move on, can you also explain what is the Vata, Pitta and Kapha? What are these three elements that we are talking about? See, ma'am, I'm telling you, our body is made by the Vata, Pitta and Kapha. Vata is known as a Vayu, air. And Pitta is known as a fire, Agni. And Kapha is mucus. This is more related with your water content. So this is the three elements. Our body is made by Vata, Pitta and Kapha. Or this is decided, our Prakriti, which kind of dosha is dominating in my body, this is already decided inside the mother womb. This is, very interesting. कि आपका जो body type है, this is already decided inside the mother womb कि आपका structure क्या होने वाला है. अगर उसको कोई ज्यादा डिसऑर्डर नहीं होने वाले तो आपको जो फ्यूचर के डिसऑर्डर हैं वो इसी कारण से होंगे. इफ योर वाता इज डिस्टर्बिंग और द रीजन इज कोई भी रीजन हो सकते हैं. इफ वाता इज डिस्टर्बिंग तो यू आर सफरिंग फ्रॉम 80 काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स. इफ योर पित्ता इज डिस्टर्बिंग तो यू आर सफरिंग फ्रॉम 40 काइंड ऑफ डिसऑर्डर. इफ योर कफा इज डिस्टर्बिंग you are suffering from 20 kind of disorders. So this is the reason we need to balance them right away. We should balance them with the help of dietary habits, with the very important the yogic practices, diet, a very balanced diet, and routine is very important. This is the reason Ayurveda says dinacharya and ritucharya, how you can behave in whole day and what is your schedule in according to the seasons. तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होती हैं कि हम किस सीजन में क्या कैसे अपने आप को रखें. बिकॉज दिस इज द रेनी सीजन. अगर आप देख रहे हैं रेनी सीजन है तो आयुर्वेद कंप्लीटली सेज कि ये टाइम आपके लिए कर्ड का नहीं है और ग्रीन वेजिटेबल्स को आप स्टॉप कर सकते हैं इस समय, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनमें एग बहुत सारे दे देते हैं. तो ये थोड़ा सा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. तो इसलिए हम पूरी तरह से ग्रीन वेजिटेबल को इस समय अवॉइड करने की बात करते हैं कि आप इन्हें मत लीजिए. तो ये वात पित्त कफ आपको जैसे उदाहरण के मैंने कहा कि so many disorder is increasing these days. The reason behind that, people are not concerned with their body type. अब मुझे यही नहीं पता कि मेरा body type क्या है, and I am eating very healthy food according to my knowledge or my calorie point of view. For example, someone suggests me intake like 2100 kcal per day. So I am according to the calorie, protein, carbohydrate, minerals, water I am consuming properly. But still I am suffering with the disorders. तो हम ये देखते हैं कि भाई हम अपना डाइट प्लान बना रहे हैं, लेकिन वो डाइट प्लान आयुर्वेद और योग कहता है उस डाइट प्लान को बनाने के लिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज योर बॉडी टाइप. आपका बॉडी टाइप क्या है, उस बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको अपने डाइट को बनाना है. A basic example I am sharing with you. A person is suffering from hyperacidity. अब वो एसिडिटी से बहुत ज्यादा हो रही है और वो अपने डाइट प्लान में ऐसी चीजों को नहीं रोक पा रहा है. टी कॉफी नहीं रोक पा रहा है, या फिर ऐसी चीजें तेज मसाले नमक को नहीं रोक पा रहा है, खट्टी चीजों को नहीं रोक पा रहा है, तो उसकी एसिडिटी कभी खत्म नहीं होने वाली. तो ये उन्हें देखना पड़ेगा कि मेरी डाइट में अल्कलाइन चीजें कहीं से आ जाए तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी से एसिड बनना कम हो जाएगा और मैं राइट टाइम पे अपने खाने को लूं, प्रॉपर उन चीजों को लूं जो अल्कलाइन है, तो मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी. और मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं. आई एम वर्किंग विद वन फॉरेनर एंड ही इज ऑलवेज सफरिंग विद हाइपर एसिडिटी. तो हम उसके पास गए, हमने कहा ठीक है, आई एम मेकिंग योर प्रोग्राम. आपका डाइट प्लान बना दिया. सारा डाइट प्लान बनाने के बाद भी एसिडिटी कम नहीं हो रही. तो आई एम वंडरिंग स्टिल एस्ट्रोनिस की भाई क्या रीजन है कि हमने उनका डाइट प्लान बना दिया. और फॉरेनर इज वेरी पर्टिकुलर, ही इज अ जर्मन गाय एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डाइट
and everything he is eating appropriate time and right time, everything is okay, but still the acidity is high. So I am also wondering what is the reason behind. तो हमने randomly, मैंने उसके एक दिन किचन में गया, तो मैंने उसका खाना चेक किया, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक था, वो खाना जैसा मैंने बताया हल्का खाना था, उसमें कुछ नहीं था, बट इन द एंड जैसे उसका खाना आया, उन्होंने सब कुछ बिल्कुल ठीक था, खाने से पहले धीरे से काली मिर्च डालनी शुरू कर दी। हाँ, ये क्या बात हुई? तो देन ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि उनको कहीं ना कहीं से अपनी बॉडी में अग्नि को ज्यादा करना था, एसिड को कहीं ना कहीं से आगे बढ़ने के लिए कुछ चाहिए था, तो कहीं ना कहीं से वो डिमांड हो रही थी पूरी। तो फिर जब उनका वो बंद किया गया तो ही इज ऑल राइट। तो सो मेनी पीपल आर सफरिंग विद सो मेनी रीजन ऑफ हाइपर एसिडिटी। द रीजन बिहाइंड दैट कि टाइम से नहीं खा रहे हैं, उन चीजों को ज्यादा ले रहे हैं, मसाले तेज खा रहे हैं, टाइम बहुत लेट नाइट फूड खा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं, फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, या खाना बहुत लंबे समय तक नहीं खा रहे। तो दिस ऑल नीडेड अ पर्टिकुलर रूटीन एंड यू शुड नो व्हाट इज योर बॉडी टाइप। देखिए, अकॉर्डिंग टू अवर एज, ये वात पित्त कफ अकॉर्डिंग टू द एज भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चाइल्डहुड, जब बच्चा छोटा होता है तो हम देखते हैं उसमें कफ से रिलेटेड डिसऑर्डर बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से कफ हमारे, जब हम बच्चे होते हैं तो कफ बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हम यंग होते हैं, आपने देखा होगा यंगस्टर को किसी के पिंपल्स आता है, कोई कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहता है, तो दिस इज रीजन ये पित्त के रिलेटेड उनको डिसऑर्डर होते हैं। यानी पित्त, जब हम यूथ को आप देखते हैं, इनमें पित्त की मतलब बहुत आसानी से ये समस्याएं देखने को मिलेगी। और जब थोड़ी सी एज हमारी ज्यादा हो जाती है, जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं, तो पीपल आर ऑल द टाइम सेइंग घुटने में दर्द हो रहा है, नी पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, आर्थराइटिस, ये सारी चीजें आप कंप्लेन करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो समय हमारा वात का डिस्टर्ब होने का हो जाता है। तो ये हमारे एज के साथ भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बट कभी भी ये हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बॉडी टाइप को जानें कि मेरी बॉडी में क्या डोमिनेटिंग है, मेरा वात ज्यादा बड़ा है या वात बहुत कम है, मेरा पित्त बहुत बड़ा है या पित्त बहुत कम है। उसे बैलेंस करने के लिए मुझे अच्छे खाने को, अपने भोजन को ठीक करना पड़ेगा, मुझे ऐसे भोजन को करना पड़ेगा जिसमें ये सब संतुलन में रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, जिसके लिए मुझे आज यहाँ पर उपस्थित हूं, दिस इज वेरी वंडरफुल टेक्निक, बिकॉज आई लिव इन ऋषिकेश। और ऋषिकेश का मतलब है दिस इज द वंडरफुल प्लेस। आप देखिए कि आप कल्पना कीजिए, एक सोचिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर पहले तो पानी है, गंगा बह रही है और पहाड़ भी सामने है, और अगर आप आधा पौना घंटा और ऊपर को चलते हैं तो आप देखते हैं बर्फ भी है। यानी 1 घंटे के अंदर आप पानी, पहाड़ और बर्फ सब कुछ देख सकते हैं। यानी मैक्सिमम 1.5 आवर यू कैन सी द बोथ द थिंग्स, सब कुछ आपको पूरा नेचर मिल जाता है। तो ये ताकत है ऋषिकेश और हमारे उत्तराखंड की। आप इसकी में हर वेदर को एंजॉय कर सकते हैं, और इतना प्यारा लैंडस्केपिंग हमारे पास है, क्योंकि ये सारी जो साइंसेस हैं, ये जो हमारा ऋषिकेश है, ये उत्तराखंड है, यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर सारे बड़े बड़े योगियों ने, ऋषियों ने तपस्या की, उन्होंने प्रैक्टिस की। और आप सब लोग जानते होंगे, जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, दुनिया में योग को अगर आप जान रहे हो, पहचान रहे हो, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी शिवानंद सरस्वती, ये ऋषिकेश में आश्रम हमारा स्थित है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, बिहार स्कूल ऑफ योग के गुरु महाराज, परम श्रद्धेय, जो अभी पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, उनके गुरु भी स्वामी शिवानंद सरस्वती, यानी उनकी शिक्षा दीक्षा भी हमारे ऋषिकेश में हुई है। तो ये हमारा गुरु स्थान है सबके लिए। तो जितने बड़े संत हैं, उन्होंने यहाँ अपनी साधना की है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बताया कि जो नाड़ी विज्ञान जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, इसमें हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक नाड़ियों को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो हमारे योग का आधार है, कि उन नाड़ियों में हम फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी कर देते हैं, जिससे आपको लाभ होता है। तो ये हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो इसके लिए हम कैसे फ्री फ्लो कर पाते हैं? देखिए, हमारा जो ऑर्गन है, आई एम टेलिंग यू द बेसिक्स ऑफ द नाड़ी विज्ञान। हमारे जो ऑर्गन है, ये 3 चीज से काम करते हैं। आपका कोई भी ऑर्गन है, वो 3 चीज से काम कर रहा है। ही कंटिन्यू रिक्वायर्ड द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द हार्ट, नंबर 1। नंबर 2, he required the continue nerve supply from the brain. और नंबर 3, he required the pranic energy supply. ये 3 सप्लाईज हमारे ऑर्गन को चाहिए,
अगर ये सप्लाई कैसे भी ब्लॉक हो जाती हैं तो उन्हें हम डिसऑर्डर कहते हैं. आई एम गिविंग यू द बेसिक एग्जांपल्स. लास्ट टाइम प्रीवियस आल्सो आई एम शेयरिंग विद यू कि भाई अब पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कार्डियक डिसऑर्डर, तो हमारे वहां क्या कहते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर हो गया तो क्या हो गया कि भाई इसकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल आ गया है इसीलिए ब्लॉक हो गया. तो व्हाट वी डू कि भाई वो फ्री फ्लो कर दीजिए, एंजियोप्लास्टी कर दीजिए, या फिर ज्यादा दिक्कत है तो बाईपास करा लीजिए. तो ये करके हम फ्री फ्लो कर देते हैं तो दोबारा ब्लड का फ्लो चलने लगता है, यानी सप्लाई ब्लॉक हो गई. नर्व सप्लाई का आप एग्जांपल देख सकते हैं. अगर एक भी आपकी नर्व दब जाएगी तो आप एबल नहीं हो सकते, आप एक उंगली को उठा नहीं सकते, एक उंगली को मोड़ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते. जैसा हम पैरालिसिस में देखते हैं कि आदमी अपने एक कदम चलने के लिए, लंबा चौड़ा आदमी बेकार हो जाता है क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई ब्लॉक हो जाती है. और उनके भी आगे इन दोनों के साथ है प्राणिक एनर्जी सप्लाई, जिसे हम अपने आप महसूस कर सकते हैं. एक गर्मी आप देखते हैं, अपने हाथों को रखते हैं, एक गर्मी आपको हमेशा मिलती रहती है. वो शक्ति जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, जो अथर्ववेद के 11वें कांड में लिखा है कि पूरी सृष्टि प्राण से उत्पन्न हुई है और प्राण में ही विलीन हो जाएगी. तो ये जो शक्ति प्राण की है, जिसे हम प्राणिक एनर्जी कहते हैं, ये तीन चीजें हमारे ऑर्गन को चाहिए. एक ब्लड सप्लाई, एक नर्व सप्लाई, एक प्राणिक एनर्जी सप्लाई. अगर ये तीन सप्लाई ऑर्गन पे हैं, ऑर्गन काम करेगा फॉरएवर. लेकिन किन्हीं कारणों से ये सप्लाईज ब्लॉक हो जाती है. उसका कारण हमारी लाइफस्टाइल हो सकता है, हमारा द पोस्चर डिफॉर्मिटी हो सकता है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें ये हो रहा है. तो ये सप्लाईज जब हम ब्लॉक कर लेते हैं तो हमें डिसऑर्डर हो जाता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक भी है स्पेशली स्पाइनल डिसऑर्डर, तो जो आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की. आप देखिए कि व्हाट हैपेंड इन द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस. आप बिल्कुल ठीक है, एकदम दिखाई पड़ रहे हैं, राइट अवे यू आर फीलिंग गिडीनेस, a severe pain in the neck as well as in the hand, और इतना दर्द हो जाता है कि आप हाथ नहीं उठा सकते, और टेनिस एल्बो में आप एक कप नहीं पकड़ सकते. तो ये क्या हो रहा है, जस्ट देयर इज ब्लॉकेजेस. और राइट अवे अगर आप इन्हें फ्री फ्लो कर दें, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को कहते हैं, वो कहते हैं नेक का कॉर्नर लगाइए, मेरे को पीछे मुड़ते ही चक्कर आ जाते हैं. तो व्हाट वी डू कि भाई आपको हम अलाइन कर देते हैं. जैसे हम अलाइन करते हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और प्राणिक एनर्जी सप्लाई ठीक से चलने लगती है, तो ही फील राइट अवे ओके, उन्हें बिल्कुल उसी से में आराम हो जाता है. ऐसा हम लोग आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाले हैं कैसे ये होता है. तो ये इसकी ब्यूटी है, द साइंस ऑफ नाड़ी विज्ञान. Dr. Saab, I am going to ask you again, I'm intervening, that once again for all the English viewers, can you explain what are these three nadis, the Ida, the Pingla and the Sushumna, and how they are related to the whole concept of pranayam also, which is the left, which is the right, what is Sushumna, and how it creates the whole pran, and that is what life is all about. If you can quickly tell us in English on that, and then we move on now. Okay, and according to the Hatha Yoga I'm sharing with you, this is the three very special nadi known as a this is the three specific nadi: Ida, Pingla and Sushumna. So the Pingla is known as the right nosal passage, this is known as the Ida nadi, this is known as the Surya nadi. This is the Surya nadi, this is the right nosal passage, and the Ida nadi is known as the left nosal passage, and Sushumna nadi is the middle one. So a person, for example, I'm sharing with you, after 1 hour they are changing. First maybe the right nosal passage, and after some time the left nosal passage. Means sometime the pranic energy moves to the Ida nadi, then Sushumna nadi. If pranic energy is inside the Surya nadi, known as a right nosal passage, then you are very, very active. Your energy is very high. So this is the right time and appropriate time to eat food, because your digestion is very, very strong, and you have a very, you're feeling very strength inside the body. So this is the reason. If a prana is moving inside the Surya nadi, so this is the right time for the food and hard work. Like you can play sports, gymnasium, and whatever, which kind of dynamic activity you want, you can perform. If your pranic energy is moving inside the right nosal passage, means Surya nadi, means Pingla nadi. If your energy is moving to the left nosal passage, known as a Ida nadi, means Chanda nadi, means Moon nadi. So this is the right time for, you can take a water, drink water, juices, and some
some like creative activity, like drawing, painting, this kind of things, because this is a little moon energy, little silent energy. So this is very, very good to do this kind of activity. But when they are changing in between, like when the prana shifting to the left, to the right, so this is the few minutes or a few minutes time, that time your prana moving to the center nadi. Means how you can recognize them? Your both the nozzle running same time. Means your prana is inside the Sushumna Nadi. This is the right time for the spiritual practices. You can do the meditation, you can do for your prayers, your spiritual practices. So this is the combination of Ida, Pingla and Sushumna, and they are changing every 1 hour. 1 hour Surya Nadi, 1 hour Chandra Nadi, and in between the Sushumna Nadi. But sometime this is very common. Whenever the sunset and the very early morning, this is the time of Sushumna Nadi. This is the reason that we are sharing the people and we are telling the people, please, this is the time for meditation in your prayers, early morning, as well as when the sunset time. So this is the time for your spiritual practices. So this is the science of the 3 Nadis, Ida, Pingla and Sushumna. Okay, I'm telling you the one more thing. This idea, the Nadi Vigyan idea is coming from Hatha Yoga scriptures. I'm sharing you this very important information with you because Hatha Yoga scripture says that there is a lot asanas, 84 lakh asanas. But in the written material, we are having very, very few asanas. Like only 32 in the Gheranda Samhita and 15 asanas in Hatha Yoga Pradipika. This is only the written material and few asanas in different scriptures like Shiv Samhita and etc. But this is the main asanas. The reason behind that, every asanas is related with the one specific nadi. Because the Hatha Yoga says, you can activate your specific nadi, then your pranic energy move inside your body, and then you can see the miracle and the changes. So this is the technique of Hatha Yoga. This is the reason they are having the very few asanas. वो आसन बहुत कम है क्योंकि उन आसनों को करने से हम स्पेसिफिक नाड़ी में ब्लड फ्लो, नर्व फ्लो और प्राणिक एनर्जी फ्लो को मेंटेन कर लेते हैं. इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं बताए और उन्होंने कहा कि इतने आसन करने से ही वो सारा काम हो जाएगा जो हमें करना चाहिए. This is the reason there are the very few asanas in the scriptures. If you perform them according to the yoga, please go through my word, according to the yoga practices. The yoga asanas is a completely different technique and the physical activity is a completely different technique because whenever you are performing yoga asanas, means with the prana dharana, you are focusing on your pranic energy and you are giving the appropriate pressure to very specific nadi. I'm sharing with you one very special nadi known as a Vraja nadi. This is related with our digestive problems. So if you activate your Vraja nadi, means your digestion becomes very, very strong right away. And Shivini nadi is very common nadi. This is very important nadi. If we press the Shivini nadi, our pranic energy, we are lifting our pranic energy upward very, very fast. This is the reason maximum asanas, we are activating Shivini nadi, and near about the 100, all the asanas, we are giving appropriate pressure to the Kand, means the navel area. Like Paschimottanasana, forward bending, you are pressing your navel area. If you are doing the back bending according to the traditional yoga, like Dhanurasana or Chakrasana, whatever you are doing, you are again giving appropriate pressure to this Kanda Yonistan, your navel area. So this is the reason all the time we are concerned with the specific nadis, activate the nadi, free flow them. ये हमारा मेन मकसद होता है योग में कि फ्री फ्लो करना है, उन्हें हमें डिटॉक्स करना है. इसीलिए योगिक के जितने भी प्रैक्टिस योग के हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं. वो कहते हैं पहले नाड़ियों को प्योर कीजिए. This is the reason that before you are starting the pranayam, they are mentioning, learn Nadi Shodhan pranayam 3 months, then come to the, then start the pranayam. तो पहले 3 महीने आप नाड़ी शोधन करेंगे, तब आपकी सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, तब आप प्राणायाम करेंगे, ऐसा शास्त्र कहता है. According to the scripture, this is the way. So this is very important to free flow the energy inside the nadis. One thing. Second thing, how this blockage comes. ये blockage कैसे आते होंगे? Because today's the topic is spinal disorders. देखिए, this is depend on our alignment. So many reasons, but the main is our alignment.
हम ये कह रहे हैं जो आज स्पाइन के जितने डिसऑर्डर हम लोग देख रहे हैं, इनके पीछे जो कॉज है, इनके पीछे जो कॉज है वो हमारे अलाइनमेंट का कॉज है। हम अपने अलाइनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते, हम उसे किसी ना किसी कारण से चेंज कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफिस में बैठा हूं, अब मेरे को 6 to 8 आवर्स ऑफिस में रहना है, तो मैं धीरे धीरे, सुबह मॉर्निंग तो ऐसे था, धीरे धीरे करके मेरा झुकते कंप्यूटर में ऐसे हो गया, तो देन माय अलाइनमेंट इज चेंज कंप्लीटली। तो मुझे अपने अलाइनमेंट को अप्रोप्रिएट रखना है। फिर हल्का सा पेन होता है तो बॉडी स्टार्टेड टू चेंज द अलाइनमेंट, तो बॉडी अपने अलाइनमेंट को चेंज कर लेती है। वो डजंट मैटर वो रॉन्ग है कि राइट है, वो नया कर लेगी, क्योंकि उसे उस समय पेन नहीं चाहिए। तो इस कारण हम धीरे धीरे करके अपने अलाइनमेंट को खो देते हैं। Then we are suffering from so many kind of disorder. I am sharing you again one picture, and then you are able to know about the alignment. This is the common pictures. Last time also I am sharing with you. This is known as the yogic alignment pictures. ये आप देख रहे हैं योगिक अलाइनमेंट का पिक्चर है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक टो हमारा बड़ा लग रहा है, एक छोटा लग रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो हमने अलाइनमेंट किया है तो बोथ लुक सेम। ये कैसे हुआ या इसमें क्या हो रहा है, आई एम शेयरिंग विद यू कि वेरी कॉमन। ये आपका जो अलाइनमेंट है, ये आपका डिसअलाइनमेंट का पोजीशन है और ये लगभग अलाइनमेंट का पोजीशन है। ये एक पोस्चर है जो हमारा एक लोअर बैक पेन का जो एक पेशेंट है उनका पिक्चर है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं 1.5 इंच से भी ज्यादा एक गैप दिखाई दे रहा है, एक तो बड़ा एक छोटा दिख रहा है। ये हमने देखा है कि जो भी आदमी, जो भी पर्सन कंप्लेनिंग अबाउट द लोअर बैक पेन, ऑलवेज दिस इज वेरी कॉमन। ये कुछ मिलीमीटर से लेके सेंटीमीटर्स तक हमें नॉर्मल मिलता है। ऐसी पोजीशन हमें हमेशा मिलती है कि उनके अलाइनमेंट में ये चेंज जरूर होता है। और जैसे ही हम उन्हें अलाइन करते हैं थ्रू अवर नाड़ी विज्ञान टेक्निक, मींस हम रिकॉग्नाइज करते हैं उनकी ब्लॉक कहां पर है, वो हमारा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, उनसे हम इसे फ्री फ्लो कर देते हैं। तो आप देखिए ये आपका राइट अवे आपका लोअर बैक पेन ठीक हो जाता है। 1 मिनट में आपको, 2 मिनट में आपको आराम हो जाएगा, क्योंकि आपका अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। एक बात, लेकिन एक बात जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शेयर की थी कि अगर आपके अलाइनमेंट आउट रहते हैं, जो आज मेरा टॉपिक है स्पाइनल डिसऑर्डर में, अगर आपका इस तरह से अलाइनमेंट आउट है तो दिस कैन बी अ कॉज ऑफ सो मेनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। जो मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हमने जो मेल पेशेंट्स के ऊपर देखा, जो भी मेल पेशेंट्स ये कह रहे थे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत जिनको थी, उनको जिनको भी 8 साल से ज्यादा ये पेन सीवियर था, they are suffering with the big snoring problem, the cardiac disorder as well as the respiration tract disorder. कुछ ना कुछ उनको रेस्पिरेशन से रिलेटेड दिक्कत थी, या कुछ कार्डियक में अंजाइना पेन था, या कुछ कार्डियक से रिलेटेड दिक्कत आ गई, सिर्फ इस कारण से। और जो फीमेल हमारे पास थे जो कंप्लेन कर रहे थे कि उनको लोअर बैक पेन 8 साल से ज्यादा है, उनमें हमने एक कॉमन बात देखी कि उनको कुछ ना कुछ यूट्रस से रिलेटेड दिक्कत थी। किसी का यूट्रस रिमूव हो गया, वहां सिस्ट बहुत बड़ी थी, या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें थी पीसीओडी जिनसे उनको बहुत दिक्कत होती जा रही थी। तो दिस इज द रीजन। ये कैसे हुआ, तो ये हमने फिर मैंने कहा दिस इज द सेकंड चार्ट आई एम शेयरिंग यू अगेन नाड़ी विज्ञान में। दिस इज द मेरुशोधन क्रिया। इसमें हमने ये देखा कि देखिए ये हमारा नर्वस सिस्टम का चार्ट है, अगर आप देख पा रहे हैं। अगर आप इसमें निचले हिस्से को देखें, L4, L5, S1 जो हमारा सबसे कॉमन लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड है, सीधा सीधा। ये आप देख पा रहे हो, ये नर्वस सिस्टम का चार्ट पूरा बता रहा है कि सप्लाई आपकी इन ऑर्गन्स पे है। तो यानी अगर आपका अलाइनमेंट आउट है तो आपकी ये सप्लाई ब्लॉक हो सकती है। तो ये कारण भी हो सकता है आपके इस तरह के रोग का। और अगर आप सर्वाइकल में कुछ देखते हैं, सर्वाइकल में अगर कुछ है C6, C5 या कहीं भी कोई दिक्कत आपको आती है, तो दिस कैन बी अ कॉज ऑफ वीक आईसाइट। आईसाइट में कुछ हो सकता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत हो सकती है, कार्डियक में कुछ हो सकता है, लीवर में कुछ हो सकता है। ये पूरा हमारा मेरुदंड, यानी हमारी नाभि से मेरुदंड की सप्लाई है, इसमें हम लोग इसी तरह से काम करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग वेयर इज द ब्लॉकेजेस। तो दिस इज द कनेक्शंस, our spine is connected. This is a nervous system chart, and you can see if a person suffering with a lower back pain, so this can be a supplies goes to our internal organs, as well as the cervical area is related with our eyes, lungs, and the heart area. So this is the reason we required
appropriate alignment to free flow blood, nerve and pranic energy supply. So this I am doing the same through my Meru Shodhanam Kriya. I am just cleaning the blockages through my silver sticks. वो silver sticks, the reason behind the silver sticks कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, वो नाड़ी को we recognize where is the block. This is the very key point. We recognize the blockages and then through the silver sticks I am moving my energy. I am pressing little bit and giving my pranic energy to the block area and we free flow right away. And the people are benefited right away. This I am sharing with you. And GNVN में हम लोग हर साल इंटरनेशनल योगा वीक करते हैं 1 से 7 मार्च तक, जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा होता है. उसकी आप हमारी वेबसाइट में भी जा सकते हैं, GNVN उत्तराखंड की वेबसाइट में आप देख सकते हैं. उसमें हम इस कैंप को हर साल लगभग कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. पीपल आर अप्रिशिएटिंग all the time. I'm sharing with this Nadi Vigyan technique with our GNVM Garhwal Mandal Vikas Nigam. This is a tourism department, Ministry of Tourism उत्तराखंड के साथ हम लोग काम करते हैं. तो उसमें हमें बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, उन्हें बहुत बेनिफिट होता है. तो ये बहुत ही अच्छा है. अगर आप में से कोई लोग चाहते हैं इसका बेनिफिट लेना, तो 1 से 7 मार्च में हमारे इंटरनेशनल योगा वीक में आप आइए. आपको ऋषिकेश में बहुत अच्छा रहने को मिलेगा. हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, आश्रम की गंगा आरती होती है, बहुत अच्छे हवन होते हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स होते हैं. दिस इज अ वंडरफुल प्रोग्राम and very sattvic food and very good diet and we very good diagnostic technique and so many good renowned yoga teachers all the time available there. So this is the one thing कि आप ऋषिकेश आएंगे, spiritual tourism, medical tourism and wonderful outing and beautiful landscape, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है. नदी, पहाड़ और थोड़ा सा ऊपर बर्फ, आपको सब मिल सकता है. So this is opening your eyes, opening your energies and automatically this is a wonderful time for purification. ये आप कर सकते हैं. तो again I am sharing with you कि हम काम कैसे करते हैं. I am sharing with you some, I am showing you some my instrument. ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये मेरी किट है, जो नाड़ी विज्ञान की किट है. ये मेरी सिल्वर की स्टिक्स है, जिनमें आप देखिए ये कील नहीं होती. Sometimes the people are sharing कि साहब this is acupressure and नहीं, this is not acupressure. No acupuncture. I am not doing puncture. वो प्रेशर तो है लेकिन वो वाला प्रेशर नहीं है, बहुत हल्का सा है, सिर्फ एनर्जाइज करते हैं, इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं. तो ये हम लोग इस तरह से कुछ एक्टिवेट कर लेते हैं. कभी हमें जरूरत पड़ती है स्टिमुलेशन की, नाड़ियों को ढूंढने की, तो हम इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन भी करते हैं. ये कुछ नेचुरल वुड्स होती हैं, इनसे भी हम लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं इस तरह से, और उसके बाद हम उन्हें रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट कर लेते हैं. तो ये हमारा टेक्निक है नाड़ी विज्ञान का, जिसमें हम इससे काम करते हैं. मैं आपसे शेयर करूंगा. एक पेशेंट मेरे पास है यहाँ, अगर आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक पेशेंट अभी मैंने आपके लिए लिया है. शी इज सफरिंग विद लोअर बैक पेन. अभी एक पेशेंट हमने इकट्ठा किया है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ. ये आप देख पाएंगे, आप इनको भी देखिए. ये देखिए थोड़ा सा अलाइनमेंट इस तरह से मिलेगा आपको. अभी ये बिल्कुल होगा. एक स्टिक दे दीजिए प्लीज. आपको मैं दिखाता हूं इनका अलाइनमेंट. अभी थोड़ा सा आपको ऐसा मिलेगा. ये बिल्कुल कॉमन है, आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको कभी भी, आप अगर हमारी वर्कशॉप में आएंगे तो आपको ये बिल्कुल कॉमन मिलेगा. आप अपने घर पे भी आराम से लेटेंगे, ये पोजीशन आपको जरूर मिलेगी. अगर उनका पेन है, ये कम हो सकती है या बहुत ज्यादा हो सकती है. आपको लगेगा टेढ़े हैं, नहीं. Because of the pain, body occupy this position. ये पोजीशन बॉडी ने ले लिया है और हम इसे अलाइन करेंगे तो ये बिल्कुल इनका दर्द ठीक हो जाएगा और इन्हें तुरंत आराम मिलेगा. मैं आपसे शेयर करता हूं, 1 मिनट. ये देखिए मेरे पास मेरी स्टिक्स आ गई हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं. So I am now doing the alignment. This is known as according to the Nadi Vigyan technique. I am aligning. This is not a sharp one. This is not a pin. This is just, you can see this very normal. But I am using only this much pressure. This much only the pressure. The main thing is I am just shifting my energy. हम क्या करने वाले हैं? I am recognizing where is the block. Number 1. Number 2, how to activate. उसे कैसे कैसे करके हमें खोलना है ताकि ये इनका अलाइनमेंट वापस आ जाए. ये मैंने प्रैक्टिकल एक पेशेंट अपना आपके लिए रखा हुआ था. ओके, प्लीज शो.
अभी हमने इनके पैर को थोड़ा सा खोल लिया है और हम अभी भी वो गैप पूरा उतना ही है, अगर आप देख पा रहे हो। देख पा रहे हैं? हेलो, हाँ देख पा मैम जरा सा करिए। आप देख पा रहे हैं अभी ये गैप, अभी मैंने सिर्फ पैर खोले, द गैप इज द सेम, स्टिल द सेम। अभी हमने क्या करने वाले हैं, इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे कहां पर ब्लॉक है और कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, थ्रू माय एनर्जी। मैं अपने फिंगर से इनमें देखूंगा कहां मुझे इनकी एनर्जी नहीं मिलती, उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ये इसकी इस टेक्निक में यही एक नयापन है कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मर्मा थेरेपी से अलग कैसे है। उन थेरेपी में हमारे सर्टेन पॉइंट है, हमें उन्हें प्रेस करना होगा। इस थेरेपी में हमारे कोई सर्टेन पॉइंट नहीं है, हम सिर्फ एनर्जी से उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसे एनर्जाइज करते हैं। ये टेक्निक है और इसमें हम लोग सिल्वर और गोल्ड की स्टिक्स टिप्स को लेते हैं, जिससे हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। तो मैं अभी इनका ब्लॉक ढूंढता हूं। ये मैं इनके ब्लॉक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, हल्का हल्का दबा के। थोड़ा सा दर्द इसमें उनको हो सकता है अगर ज्यादा ब्लॉक हो तो, लेकिन हमारा प्रेशर बिल्कुल इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा हम प्रेशर नहीं देंगे। बिल्कुल हल्का, कोई ज्यादा दबाव नहीं देना है, सिर्फ एनर्जाइज करना है इसे। और ये आगे को ढूंढ रहे हैं। ये एक ब्लॉक मुझे मिल गया है, पर आप देखिए इसमें प्रेशर सिर्फ इतना ही, ये प्रेशर हमारा इतना ही, प्रेशर इससे ज्यादा नहीं। हम इसे कोई बहुत ज्यादा नहीं प्रेस करेंगे, सिर्फ एनर्जाइज करेंगे, आराम आराम से ऐसे प्रेस करना, बिल्कुल हल्का, और कुछ नहीं करना। सिर्फ ब्लॉक को पहचानना है और इन्हें रिकॉग्नाइज करना है और बस हल्का प्रेशर देना है। और उसके बाद उसके ट्रैक को हमने ढूंढना है, पीछे से उसे ट्रैक को हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है ये, यहाँ है। आप देखेंगे कि पूरा उसका लेग जो हमारे है, ये प्रेशर पूरा ग्लूटियस मैक्सिमस तक जाएगा, पूरा ये पूरा एरिया जो इनकी ब्लॉक नाड़ी है, पूरा उसको एक्टिवेट करेंगे, अगर आप देख पा रहे हो। और ये तुरंत इन्हें रिलीव करेंगे। हल्का सा किया, और ये दोनों तरफ से हमें अलाइन करना है। ब्लॉक पॉइंट को ढूंढना है और उसे एनर्जाइज करते रहना। एक यहाँ मिल गया है, एक पॉइंट और हमारा है ये आप देखिए पूरा प्रेशर पूरी लेग के ऊपर जाएगा और ये बिल्कुल राइट अवे इनके लो बैक पेन को एकदम आराम आपको रिलीफ हो जाएगा 1 सेकंड में। और फिर उसके बाद हम इस पूरी लाइन को मिलाने की कोशिश करेंगे, कहां कहां पर ये ब्लॉक है। एक हैमस्ट्रिंग के पास है, एक काफ के पास है, एक इधर है और एक इधर है। इनको हल्का सा हम लोग और एक्टिवेट कर देंगे, उधर से आएगा। ये अगर आप देख पा रहे हो, अब देखिए, अब हमारे डेमोस्ट्रेटर का लेग देखिए,
पेशेंट का हमारा अब हमारा अलाइनमेंट लगभग बराबर आ गया है और इनका दर्द भी ठीक हो गया। खड़े हो जाइए। तो ये एक बहुत टेक्निक मैंने कहा था कि स्पेसिफिकली हम इधर से लाइन है उधर, स्पेशली हम लोग ये कोशिश यही करते। ठीक हो बेटा, थैंक यू। तो ये मैंने कहा था कि हमने इसमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और प्राणिक एनर्जी सप्लाई को फ्री फ्लो किया, अलाइनमेंट को मेंटेन कर दिया। अगर आपने अलाइनमेंट को ठीक कर दिया, यानी आपने क्या काम कर दिया, आपने उसका ब्लड फ्लो, नर्व फ्लो और प्राणिक एनर्जी फ्लो मेंटेन कर दिया और राइट अवे उसको बेनिफिट हो जाए। ये तो हुई हमारे हाथ की बात कि भाई आप मेरे पास आएंगे तो हम आपके लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू वेलकम यू एज वेल एज यू कैन वेलकम टू उत्तराखंड। सो ब्यूटीफुल प्लेस, आप यहाँ आ सकते हैं। वंडरफुल प्लेस। हमने ये टेक्निक सीखा है गंगोत्री, गौमुख, हमारे बहुत स्पेशल एरियाज हैं जहाँ ये हीलिंग साइंस बहुत डेवलप हुआ, वहां भी आप जा सकते हैं। हमारा बहुत अच्छा भोजवसा, इतना प्यारी जगह आपकी है। हमारा यहाँ से थोड़ा ऊपर अगर आप जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम बहुत खूबसूरत है। ओली हमारी बहुत खूबसूरत जगह। ये पूरी एरिया, मैं इनको इसलिए आपको कह रहा हूँ, दिस इज वंडरफुल प्लेस फॉर हीलिंग साइंस। ये पहाड़ और नेचर ऐसा है जो आपको बुलाता है और ये आपको खुद ही इतना चार्ज करता है, खूब एक्टिवेट करता है। और हमारे पास बहुत ही हेल्दी फूड भी, बड़ा नेचुरल फूड है, ऑर्गेनिक फूड है। और हमारे वहां पर बद्री गाय पाई जाती है। मैं मैडम आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि आप लोग स्पेशली अगर आप सुन रहे हो, दिस इज अ वंडरफुल काउ नोन एज अ बद्री काउ। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। वो इतना छोटा है जैसे लगता है कि तो गाय का बच्चा होगा, लेकिन उसका दूध येलो कलर का होगा और वो इतना ताकतवर है कि अगर आप उसको एक बार पी लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने अमृत पी लिया है। तो दिस कैन बी पॉसिबल इन उत्तराखंड एज वेल एज इन हिमालय। आप कहाँ भी जा रहे हैं हमारे वहां, आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं। बड़ा हेल्दी फूड मिलेगा, हीलिंग साइंस मिलेगी और बहुत सारी स्पिरिचुअल केव्स हैं। जैसे हमारे ऋषिकेश से थोड़ा आगे जाके वशिष्ठ गुफा है, वहां जा सकते हैं। गंगोत्री में बहुत सारी गुफाएं, केदारनाथ में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपने देखा होगा वहां साधना की थी। तो वो स्थान ऐसे हैं जो शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो यहाँ आकर आप इन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। ये तो हुई मेरे स्तर की बात कि मैंने इनको अलाइन किया। क्या ऐसा हो सकता है कि टूरिज्म ने जो इतना बड़ा काम हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है इन साइंस के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप भी अपने आप को नेचुरल वे में अलाइन कर सकते हैं। जो काम मैंने प्रेशर देके किया उसे आप अपने आप भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने बताया, जैसा मैंने आपको कहा था, दिस साइंस कमिंग फ्रॉम द योगिक स्क्रिप्चर्स। योग के स्क्रिप्चर्स में आया है क्योंकि ये नेचुरल ही अगर आप इस आसन को करेंगे तो आप एप्रोप्रिएट प्रेशर उसी नाड़ी में डाल देंगे जिसमें जाना चाहिए। तो जो काम मैंने इनकी सहायता से किया उसे आप नेचुरल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अर्पिता हैं। डॉक्टर अर्पिता हमारे आज के डेमोन्स्ट्रेटर हैं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने परफॉर्मर हैं उनके लिए अलाइनमेंट के आसन परफॉर्म करें। डॉक्टर अर्पिता। नमस्कार। डॉक्टर अर्पिता हमारे साथ हैं और डॉक्टर अर्पिता also having 23 years experience of yoga, तो बहुत पुराने हैं हमारे फील्ड में। तो अब जो मैडम हम लोग बात कर रहे हैं हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए, how you can align yourself, how you can activate your nadi yourself, this is the main area. And today our topic is spinal disorder, how we can align ourselves. So I'm sharing with you, especially with the cervical spondylitis, lumbar spondylitis, slip disc and sciatica pain, how you can cure through asanas. ये नाड़ी विज्ञान के आसन कैसे आप करेंगे। तो आई एम शेयरिंग विद यू नंबर 1 आसन। दिस इज नोन एज अ मकरासना, क्रोकोडाइल पोज। दिस इज द नंबर 1 आसनास फॉर अलाइनमेंट। आप देखेंगे, यू कैन सी द डेमोन्स्ट्रेटर इज जस्ट performing this makrasan. This is looks like very simple asana. This is known as a crocodile pose. आप देखिए this crocodile pose, ये दोनों पाम के ऊपर आपका फेस रेस्ट कर रहा है और आपने अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर ओपन योर लेग। आपने अपने लेग शोल्डर्स के अकॉर्डिंग खोले हुए हैं और अपनी हील को प्रेस करना है जमीन में। अगर आप देख पा रहे हो, अपनी हील को प्रेस करते रहना जमीन में। आप ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटर हमारे जैसे कर रहे हैं। ये अगर आप देख पा रहे हो, अभी हम लोग जो मैं काम कर रहा था, अगर आपको
अगर आपको याद है, आई एम वर्किंग इन दिस एरिया स्पेशली, मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपके लिए काम कर रहा था इस एरिया में, अंगूठे में, इस पे और गैस्ट्रोनीमियस में, हेमस्ट्रिंग में, इन एरियाज में इन एरियाज में मैं काम कर रहा था। तो इनमें आप नेचुरल, ये मेरे को प्रेस नहीं करना, आप इन्हीं नाड़ियों को जिन्हें मैं दबा रहा था अपने आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप डेमोन्स्ट्रेटर को देख पा रहे हैं, जितना आप इस मकरासन में हील को दबाते हैं उतना आप अपने हिप यानी लोअर एरिया को एक्टिवेट करते चले जाते हैं। इस मकरासन में, इन दिस पोज, near about 75% of body is lying down on the ground. तो 75% बॉडी आप देखिए, आपका थाई, हिप, स्टमक, सिर्फ चेस्ट और लंग्स ऊपर हैं और हेड ऊपर है। तो हमारे लंग्स पंप करने के लिए फ्री हैं और हमारा हार्ट पंप करने के लिए फ्री है। ये दोनों हमारे लिए फ्री हैं सांस लेने के लिए और पंपिंग के लिए। इनमें कोई प्रेशर नहीं है। बाकी पूरी ग्राउंड पे हमारी पोजीशन है, जिस कारण हमारे ग्रेविटेशन पुल, हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सब जगह बराबर है और हमारी जो स्पाइन है उसे एस शेप में आना है, नेचुरल एस शेप में। ये पोजीशन हमारी नेचुरल एस शेप बन गई है स्पाइन की। तो आप अगर इसे देख रहे हैं, इस समय हमारी बॉडी इस तरह से हो रही है, तो आपके चेस्ट बाहर है, स्पाइन पूरा नेचुरल एस शेप को ले रही है और नाड़ी विज्ञान का काम कर रहे हैं आपकी हील्स। दे आर गिविंग द एप्रोप्रिएट प्रेशर टू द 1, 2, 3 and 4 पॉइंट। जो 4 पॉइंट में दबा रहा था, यहाँ ढूंढ के, यहाँ ढूंढ के और यहाँ ढूंढ के, उन्हें ये नेचुरल दबा रहे हैं। लेकिन तरीका क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर, आपको अपने कंधे के बराबर खोलना। अगर कंधे से ज्यादा खोल देंगे तो दिस इज बिकम अ रिलैक्सेशन पोस्चर। ये स्पाइन के रिलैक्सेशन का पोजीशन हो जाएगी, आसन हो जाएगा। इसमें स्पाइन का आप ये देखिए आराम करेगा इसका, और हमें इसे अलाइन करना है, हमें इसमें प्रेशर डालना है, स्पेसिफिक नाड़ी को दबाना है। तो उसके लिए आप देखिए पूरा मसल रिलैक्स हो गया। तो जैसे ही ये वापस अपने शोल्डर के बराबर आते हैं तो आप देखिए बिल्कुल टाइट हो जाएगा, हिप पोर्शन पूरा उठ जाएगा और ये देखिए ग्लूटियस मैक्सिमस का पूरा एरिया पूरा उठ के आ जाएगा और ये सारी नाड़ियां एक्टिवेट हो जाएंगी और पूरी स्पाइन ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी इन इस पोजीशन में। इस पोजीशन में आपको बहुत बेनिफिट होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क और साइटिका पेन में। ये वंडरफुल पोज है आपका, इसे आप कर लेते हैं। आगे थोड़ा सा दिखा दीजिए। So doctor, you were saying that this asana will help all these ailments, is it? जी मैडम, because this is the right way aligning your whole the spinal cord, all the vertebrae coming in the one line. So this is the problem we are suffering. तो ये आप देखिए to our viewers that even if you don't have a problem, we should still do it. Oh, this is the wonder. This is, I'm sharing you the natural alignment pose. The name of the asanas is natural alignment pose. So this is the wonderful pose. For example, after the session, you also perform, please, because all the time you're sitting and watching and continuously sitting. So we need alignment. So this is natural alignment pose. One. Second thing, if you need a neck action, natural neck action, because sometimes you are feeling a big stiffness in the neck. So the people are, and the physiotherapist recommending you neck action kar lijiye. So I'm sharing with you wonderful neck action technique. Just slowly crawl your elbow forward. Yeah, just so you can see a lot of pressure in the neck. So this is known as a natural neck action position. So this is just opening your neck. जो आपका C6, C5 का दिक्कत है, उनमें अगर कोई स्वेलिंग नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका काम करेगा बिल्कुल उसी तरह से जो हम करते। नहीं तो आपको you can just stay in this posture in 2 minutes. So this is the wonderful technique, and right away you are benefited. Right away you are benefited with slip disc, lower back pain and the sciatica pain. Okay, this is the number 1 alignment pose. जो मैं काम कर रहा था वो अपने आप हो रहा है। Number 2 is Bhujangasana. देखिए Bhujangasana is the snake pose, and in this snake pose the hand position, देखिए इसमें जो इस snake pose में hand position है वो बड़ी important है। ये हमें जो अलाइनमेंट का आसन है इसके लिए हमें अंडर द आर्मपिट रखना है एक, और दोनों हील को साथ में रखना है 2। ये 2 महत्वपूर्ण चीज है इसमें। ये हील नहीं उठानी है, हील टुगेदर एंड हैंड अंडर द आर्मपिट एंड स्लोली इनहेल एंड लिफ्ट योर बॉडी लिटिल बिट अप, नेवल शुड बी ऑन द ग्राउंड।
ये आपने करना है, एल्बो इन साइड, एल्बो इन रखनी है। ये आप देखेंगे अगेन द सेम प्रोसेस हैपनिंग। ये आपका ये सारा एरिया जो नाड़ियां मैं यहाँ पे दबा रहा था, ये सारी नेचुरल दबेंगी और ये पूरा आपके लिए वंडरफुल हो जाएगा। सारा काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, लोअर बैक पेन के लिए और स्लिप डिस्क के लिए, अगर इतना आप कर लेते। 2 डाउन, अगेन 3, इनहेल, 4 डाउन। ये देखिए हील नहीं आपको ओपन करनी, हील टुगेदर। इसके बाद आपका थर्ड मकरासन आप रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए रिलैक्सेशन के लिए आप पैर को खोल सकते हैं, लेकिन जब अलाइनमेंट की बात होगी तो आपको वैसा ही रखना है। नाउ थर्ड वन इज शलभासन। शलभासन में जो मैं आपके बिकटो के साथ प्रेशर कर रहा था, जो प्रेस कर रहे थे हम लोग, वो एक्टिवेशन जो हम लोग कर रहे थे, उसके लिए हमने क्या काम करना है, बिकटो को मिलाकर बिल्कुल खींचना है, बिकटो को जितना आप खींच सकते हैं, और एक पैर को उठाना है, 1 सिर्फ, बस इतना इनफ। जितना आपने पैर को उठाना है इतना बस। ये आपका शलभासन की पोजीशन है। इतना अगर आप इसे उठाते हैं, 2 डाउन, ये आपके लोअर के पूरे एरिया को सेट करेगा। 3, 4 डाउन, आराम कीजिए। और लास्ट वन, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होने वाला है, पोजीशन भुजंग शलभासन, ये वेरिएशन है। इसमें हम ये दोनों काम एक साथ करने वाले हैं। इस वेरिएशन में दोनों हाथ को अंडर द आर्मपिट रखेंगे। अब आगे से उठेंगे और एक लेग को उठाएंगे। 1, 2 डाउन, 3, 4 डाउन, 5, 6 डाउन, शशांकासन, कैट पोज। देखिए लास्ट में आपको ये जरूर करना है, इन 4 आसन के बाद आपको अपने अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए कैट पोज करना है। 1, ये पूरा जितना आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। 2, इनहेल, 3, एक्सेल, 4, इनहेल। ये रिलैक्स, ये हमारे पास है जो आपको नेचुरल ही अलाइन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। थ्रू दिस आसनस यू कैन अलाइन योरसेल्फ विदाउट एनी प्रॉब्लम राइट अवे। तो ये मैंने आपसे जो शेयर किया है, ये सेट ऑफ दिस आसनस इज मोर देन इनफ फॉर अस। अगर आप इसे कर लेते हैं तो यू आर फ्री फ्रॉम लोअर बैक पेन, sciatica, slip disc, because what I am doing, I'm giving the appropriate pressure to the block nadi. No need to be recognized. आप ये नेचुरल वे में कर सकते हैं इनके साथ। मकरासन आपकी स्पाइन को राइट अवे ही पूरा अलाइन कर देता है, उस एस शेप में डाल देता है। और ये आसन आपकी स्पेसिफिक जो नाड़ियां जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, उन्हें खुद ही पहचान कर नेचुरल वे में कर लेते। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जो आपकी पूरी स्पाइन को फिट रखने के लिए कोई भी इसे परफॉर्म कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो दिस कैन बी अ टेक्निक, राइट अवे यू आर बेनिफिटेड, एंड स्टिल आई एम शेयरिंग विद यू। इफ यू वांटेड टू रियली मोर इंटरेस्टेड, यू कैन कम उत्तराखंड। हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट इज वेलकमिंग यू ऑल द टाइम, स्पेशली सो मेनी वंडरफुल प्लेसेस। आपको ये बताना है व्हाट यू नीड। आप वाटर स्पोर्ट्स चाहते हैं, आप आइस को चाहते हैं, आप माउंटेन चाहते हैं, आप बुग्याल चाहते हैं, आप गढ़वाली ट्रेडिशनल माउंटेन का फूड चाहते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अवर स्टेट। और अगेन आई एम इनवाइटिंग यू, 1 मार्च to 7 मार्च इज इंटरनेशनल योगा वीक। हम सब लोग वहाँ अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से हमारे बहुत सारे पूरे भारत से लोग बुलाए जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग बुलाए जाते हैं। तो आप वहां पर आकर ये काम कर सकते हैं। बहुत सारी और बातें करनी थी, लेकिन आज again I am thankful to all of you. Thank you very much. Again I am welcoming you. Come to Uttarakhand, relax yourself, energize yourself with nature.
Thank you. Thank you, Dr. Joshi. And viewers, so block your calendar 1st March to 7th March 2021. But if you don't have time in that particular week, as Dr. Saab said, we've actually taken you to Uttarakhand on a couple of other occasions also. It's such an amazing, beautiful state of India. Again, to remind all of you, why are we linking a very significant part of our heritage to tourism? I must share with you some statistics because I think people are wondering, what are we doing in tourism? Why are we showcasing such different aspects? Well, according to the International Healthcare and Research Center statistics, India occupies 5th rank globally and 2nd in Asia on medical tourism index. Medical tourism in India is growing by almost 30% each year. And as of now, it is an industry worth US dollars 5 to 6 billion, and it is supposed to graph up to 9 to 10 billion. So viewers, there is a huge opportunity as far as tourism as a business also goes for all of you who are interested in turning the amazing heritage and culture of our country into an opportunity of business. We have been showing you so many other aspects of India. And I think in the whole significant narrative that has developed after the COVID-19 has hit us on the need not only just to be Atmanirbhar, but also to go vocal for local and owning up the amazing heritage of our country with 45,000 species of birds and plants, the number of nature parks, I think the embroideries, the foods, the cuisines, with more than 3,700 archaeological survey of India's monuments in India, and I'm not even counting the state ASI monuments. I really think, we can spend our whole lifetime and we would not have finished the various elements of India. I must also share with you viewers that the SCPC, we have this site which tells you about the potential of medical providers, and the alternative therapies remain as a significant part of the medical tourism in India. So we must thank Dr. Joshi and Arpita ji from Uttarakhand for bringing us a very crucial element of medical tourism, both for domestic travelers and for foreign travelers. This is our wealth. Let's own it up. Let's be fit and let's be healthy, and let's make sure that we are absolutely fit and fine as we beat COVID. On 18th of July, we are going to take you back to Madhya Pradesh for a different element of India, and that's the beautiful Maheshwar. And the Maheshwar Indore belt is where we are going to go from Uttarakhand. It's very nice weather in Uttarakhand. We're going to take you to some heat, but then it's raining also in some parts, so it's still nice to go there. Well, Dr. Joshi and Arpita and all the viewers, once again, our apologies for the change in time, and thank you for joining in at a different time. And Dr. Joshi and Arpita, NEGD, viewers, my team, all of you, a big thanks to all of you. See you again on 18th, next Saturday. We'll be in Maheshwar and we'll show you some beautiful sarees from there. Namaskar, dekhte rahiye hamare saath Atulya Bharat, Incredible India. Thank you.